السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا پھر ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی کے ساتھ مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ رات جلگاؤں شہر کا جو بالکل سلم ایریا ہے، مل کالونی، گیندلال میل، وہاں پر زبردست انداز میں پروگرام ہوا۔ بچوں نے بہت ہی مسجد اکبری کے استاد محترم حضرت مولانا شعیب صاحب نے بچوں کو بہت زبردست انداز میں تیار کروایا تھا، اور بڑی پیارے انداز میں بچوں نے تقاریر، نعتیں، نظمیں، ڈرامے، مکالمے پیش کیے۔ اس کے بعد اخیر میں میرا خطاب ہوا جس میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مرد، خواتین، پیرنٹس، ماں باپ جمع تھے، جس میں میں نے تقریباً پونا گھنٹہ کی تفصیلی تقریر میں تعلیم اور بچوں کی دینی، اسلامی، ایمانی تربیت پر زور دیا۔ خیر، یہ پروگرام بڑا کامیاب ہوا۔ چلیے آئیے، اس وقت میں ابھی یہاں سے خبریں بول کر میں گجرات کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ جی ہاں، گجرات کے سورت سے قریب، ترکیسر سے قریب ایک علاقہ ہے نانی نرولی مانگرول سورت، نانی نرولی مانگرول سورت۔ آئندہ کل یعنی 15 مارچ 2023 کو بہت ہی شاندار پروگرام نانی نرولی مانگرول سورت میں ہونے جا رہا ہے۔ مسجد خدیجہ کے بازو میں یہ پروگرام ہوگا، جس میں میں مقرر خصوصی کے طور پر ہوں۔ ایسے ہی حضرت مفتی سلیمان صاحب دامت برکاتہم یہ بھی آ رہے ہیں، استاد حدیث فلاح دارین ترکیسر، اور حضرت قاری اسماعیل صاحب کوساڑی دامت برکاتہم استاد قرات فلاح دارین ترکیسر، اور بھی علاقے کے بڑے علماء اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں سورت، کوسمبا اور نانی نرولی مانگرول آس پاس کے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آئندہ کل 15 مارچ کو اس پروگرام میں جو بعد نماز عشاء فوراً منعقد کیا جا رہا ہے، اس پروگرام میں آپ تمام حضرات شریک رہیں۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے پارلیمنٹ سے۔ جی ہاں، گزشتہ کل پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ کس بات کو لے کر ہنگامہ ہوا؟ کہ لندن میں راہل نے ہماری پول آخر کیوں کھول دی؟ اب سبھی کھول رہے ہیں۔ اپوزیشن نے ہنڈنبرگ رپورٹ کے معاملے کو اٹھایا۔ شور شرابے کے دوران دونوں ایوانوں کی کارروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ گزشتہ کل شروع ہوا۔ پہلے دن جہاں بی جے پی نے راہل گاندھی کے لندن میں دیے گئے بیانات کو ایشو بناتے ہوئے کانگریس کو گھیرا، وہی اپوزیشن نے اڈانی پر ہنڈنبرگ رپورٹ کا معاملہ اٹھایا۔ یا ایکچوئل میں بی جے پی بڑی بوکھلائی بھی ہے کہ کوئی بھی ان کی پول کھولنے پر تلا ہوا ہے۔ حرکتیں ایسی ہے کہ باہر والے بھی کھول رہے ہیں، اندر والے بھی کھول رہے ہیں، اور بی جے پی بیچاری تلملا رہی ہے، بوکھلا رہی ہے۔ تو پارلیمنٹ میں راہل نے جو لندن میں بیان دیا، اس کو لے کر بی جے پی نے کافی ہنگامہ کیا، تو وہیں پر اپوزیشن نے پھر آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہنڈنبرگ کی رپورٹ اور تمہارے متر اڈانی ابھی تک ان کے گھر سی ڈی، سی آئی ڈی اور ای ڈی ابھی تک کیوں نہیں پہنچی ہے؟
आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर कर्नाटक से बड़ी नीच हरकत की है कर्नाटक के नायब वजीर आला ने। जी हाँ, अब असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता कल ही आपको बताया था कि कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन हैं। हज़रत मोदी जी के दौरे भी वहाँ पर शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, काले शर्ट और काले टी शर्ट से कितना उन्हें डर लगता है कि कोई विरोध करते हुए काला शर्ट ना आप दिखा दे, काला कपड़ा ना दिखा दे। तो पुलिस अधिकारियों ने बाकायदा नौजवान को नंगा कर दिया, मगर काला कुर्ता पहनने नहीं दिया, काला टी शर्ट पहनने नहीं दिया। तो खैर, अब कर्नाटक में इलेक्शन है, इसलिए वहां का माहौल घटिया तरीके से खराब किया जाएगा। इस वक्त खबर आ रही कि वहां के नायब वजीर आला ने बड़ी नीच और घटिया हरकत करते हुए बड़ा खतरनाक बयान दिया है। अजान को लेकर एन असेंबली इलेक्शन के मौके पर येशुरप्पा ने कहा कि नऊज़ बिल्लाह, अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, लेकिन खबर है, बोलना है। नऊज़ बिल्लाह, इस खबीस ने कहा कि अल्लाह बहरा है, जिसे पुकारने के लिए लाउड स्पीकर पर चीखना पड़ता है। तो इस तरीके से बड़ा घटिया और नीच बयान कर्नाटक के नायब वजीर आला ने दिया है, जिससे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। आइए दिन बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। जी हाँ, जनाब तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब, जो एक बेबाक आलिम दीन हैं और बिल्कुल भगवा धारियों की नब्ज़ पर हाथ रख देते हैं, जिससे भगवाधारी तिलमिला उठते हैं। खैर, तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र के ख़िलाफ़ कहा, फिर खालिस्तान वाली बात कही और मुस्लिम राष्ट्र वाला बयान दिया, जिस पर तौक़ीर रज़ा ख़ान के इस बयान पर इश्तिआल अंगेज़ी के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज हो चुका है। नागफनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। खैर, कोई बात नहीं, अगर मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब इश्तिआल अंगेज़ बयान देते हैं तो मुकदमा हुआ है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान से पहले भगवा आतंकवादियों ने इससे भी कई ज़्यादा खतरनाक बयान दिए हैं, मगर कमाल की बात यह है न उन पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, जबकि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थूक रही है, फटकार रही है, मगर इंसाफ का मर्डर और कत्ल हो रहा है। उन भगवा आतंकियों पर न मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, न उन्हें गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में ठूंसा जा रहा है। लोगों का ये मानना है और सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर तौक़ीर रज़ा ख़ान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो फिर भगवा आतंकवादियों को छोड़ा क्यों जा रहा है। आइए, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में लव जिहाद को लेकर बीजेपी ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की और बीजेपी के कुछ लीडरों ने बड़ा घटिया बयान दिया और बाकायदा असेंबली को गुमराह किया। लव जिहाद को लेकर बिल्कुल गलत आंकड़े बयान किए और फिर जलील भी हुए, माफ़ी भी मांगना पड़ी। खैर, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि रईस शेख, जो सपा समाजवादी पार्टी के लीडर है, विधायक है, उन्होंने कहा कि लव जिहाद के मामले में मंत्री ने गलत जानकारी दी है, इसलिए रईस शेख ने मुराद शिकनी के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो यहाँ पर भी बिल्कुल असेंबली को गलत जानकारी देकर पूरे मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जब उनकी पोल खुल जाती है तो फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए दिन बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही। जी हाँ, महाराष्ट्र की बड़ी खबर है। नासिक टू मुंबई, नासिक से लेकर मुंबई तक किसानों का पैदल मार्च शुरू हो चुका है। प्याज के लिए 2000 रुपये फी क्विंटल और दीगर मुतालबात पूरा करने का मुतालबा लेकर किसान पैदल मार्च के लिए निकल चुके हैं। किसानों की अव्वलीन मांग खासतौर पर प्याज की मुनासिब कीमत है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार आ गई है, अब यहाँ पर भी किसानों को कुचला जा रहा है और किसानों को मरने और आत्महत्या पर मजबूर किया जा रहा है। प्याज का जो हाल हुआ है, महाराष्ट्र के एक किसान ने तो अपनी पूरी खेती को आग लगा दी कि जब मुझे मेहनत का पैसा नहीं मिल पा रहा है और जितनी मेरी लागत है वो भी नहीं मिल पा रही, तो मैं इस प्याज को मार्केट में ले जाकर क्या करूं।
उसने पूरी खेती को आग लगा दिया। तो खैर बेशरम सरकार को शर्म नहीं आ रही है और किसान परेशान है। अब किसान अपने मुतालबात को लेकर नासिक से लेकर मुंबई पैदल रवाना हो चुके हैं। आइए दिन बड़ी खबर इस वक्त अफसोसनाक खबर मैं से कहूँगा जो मुंबई से आ रही। मुंबई से अशरफ आरिफ खान ने बताया कि मुंबई के ओशिवारा में 25 दुकानें, जो फर्नीचर की जो दुकानें थी लाइन से, तकरीबन 25 दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई, जिसमें 10 गाले तकरीबन खुद इन्हीं के थे, यानी अशरफ आरिफ खान इन्हीं के 10 गाले थे। आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को काबू करने में कुछ हद तक कामयाब हुई, लेकिन काफ़ी नुकसान इस वक्त हुआ है। फायर ब्रिगेड की 12 से 14 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त फायर ब्रिगेड की जानिब से कूलिंग का अमल जारी है। फायर हुक्काम के मुताबिक आग जोगेश्वरी इलाके में रिलीफ रोड पर वाक़ ग्रॉस कम्प्लेक्स में सुबह 11 बजे लगी। मैं आपको बताऊं कि अशरफ खान साहब ने मुझे मैसेज भी किया है और उन्होंने बताया, जब उन्होंने मैसेज किया 3:42 पर दोपहर में, तो उन्होंने बताया कि 3 बाटले अभी तक फटे हैं। खैर आग किस वजह से लगी है अभी पूरी तहकीकात सामने नहीं आ रही है। जोगेश्वरी के फर्नीचर गोदाम में आग लगी। वहीं पर दूसरा वाकया मुंबई के मलाड़ में भी ऐसे ही वाकया पेश आया। मलाड़ ईस्ट के कच्ची आबादी इलाके में 2 बड़ी आग लगने की इत्तलात मिली है, जिनमें से एक को लेवल 3 फायर करार दिया गया है। बताया जा रहा है, आज मुंबई उर्दू न्यूज़ ने लिखा है कि मलाड़ में 800 झोंपड़ियां जलकर खाक हुई है और एक शख्स की मौत भी हुई है। सूरत हाल पर एक अपडेट शेयर करते हुए बीएमसी ने कहा कि 15 से 20 एलपीजी सिलेंडरों में धमाके हुए और मौके पर 12 मोटर पंपों की 10 लाइनें काम कर रही है। एक लाश भी बरामद करके अस्पताल पहुंचा दी गई है। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से हम जिन्स परस्तों की शादी को लेकर। जी हाँ, हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी मंजूरी देने पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की आईनी बेंच समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी मंजूरी देने के मामले पर पीर के रोज अहम पेशरफ्त का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला 5 जजों की आईनी बेंच को सौंप दिया है। इस ताल्लुक से आइंदा 18 अप्रैल को समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। अर्जी में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हम जिन्स परस्तों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन का मुतालबा किया गया है। हालांकि मरकजी सरकार ने इसका खुलकर विरोध किया है। मरकजी सरकार ने इस बारे में कहा कि यह हिंदुस्तान के फैमिली निज़ाम के खिलाफ है और इसमें कानूनी पेचीदगियां भी हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट अहाते की मस्जिद को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अहाते से मस्जिद को हटाने के 2017 के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की कोई वजह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को जगह खाली करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को मस्जिद के लिए दूसरी जगह पर जमीन की मांग के लिए रियासती हुकूमत के सामने अपना केस पेश करने की इजाजत दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अदालत के अहाते में वाक़े मस्जिद को खाली करने का हुक्म दिया था। वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए जस्टिस M.R. शाह और C.T. रवि कुमार के बेंच ने अर्जी गुजारों को मस्जिद को हटाने के लिए 3 माह का वक्त दिया और कहा कि अगर आज से 3 माह के अंदर अंदर अगर तामीरात न हटाई गई तो उन्हें हटाने या गिराने का रास्ता हाई कोर्ट समेत हुक्काम के सामने होगा। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, दिल्ली से कतर जाने वाली फ्लाइट, कतर जाने वाली प्लेन दिल्ली से, उसमें एक मुसाफिर की मौत हो गई। हंगामी तौर पर कराची में प्लेन को लैंडिंग कराना पड़ा। राजधानी दिल्ली से दोहा कतर जाने वाली इंडिगो तैयारी की पाकिस्तान में हंगामी लैंडिंग की गई। आपको बता दें कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से इस प्रवास को कराची पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया। एयरलाइन के एक एहलकार ने खबर रसा एजेंसी ANI को इसकी इत्तला दी। बताया जा रहा है कि तैयारी में सवार एक मुसाफिर की मौत हुई। इंडिगो एयरलाइन ने कहा कि मुसाफिर को हवाई अड्डे पर तिब्बी टीम ने
मुर्दा करार दे दिया था। मैं आपको बता दूं कि ये मुसाफिर नाइजीरिया का रहने वाला है। इंडिगो एयरलाइंस की परवाज 6E का एक मुसाफिर प्रवास के कुछ देर बाद खुद की तबीयत नासाज महसूस कर रहा था। उसके बाद तैयारे के पायलट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और तिब्बी हंगामी सूरत हाल से आगाह किया। खैर, इस शख्स की, जिसका नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है, 60 साल की उम्र बताई जा रही है, यह नाइजीरिया का शहरी है। दिल्ली से कतर जाने वाली फ्लाइट में इसका इंतकाल हो गया। आइना दिन महाराष्ट्र की बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि आधी रात से महाराष्ट्र के 18 लाख सरकारी मुलाजिमीन हड़ताल पर होंगे। पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा नाफिज करने का मुतालबा किया जा रहा है। वजीर आला शिंदे, नायब वजीर आला फडणवीस, अपोजिशन लीडर के साथ नीम सरकारी, सरकारी और गैर तदरीसी मुलाजिमीन की जो बातचीत हुई बेनतीजा रही। सरकारी और नीम सरकारी मुलाजिमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम गुज़िश्ता 1 माह से महाराष्ट्र में मौज़ूए बहस है। इस मसले को लेकर मुलाजिमीन ने 14 मार्च यानी आज निस्फ शब से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसको रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से बातचीत रखी गई थी, मगर वो बातचीत बेनतीजा रही है। इसकी वजह से अब कई खिदमात मुतासर होने का भी खदशा है। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार आ गई है और अब एक एक डिपार्टमेंट के बुरे दिन आने वाले हैं। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।